Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel. Hope you all are doing well. Today we are working on a very basic project which is based on two languages. These are HTML and CSS. And the project is basically on the famous writer of Pakistan, and here is Halilur Rahman Qamar. Everyone knows who is Halilur Rahman Qamar. He is very famous Pakistani writer. So this project has 10 pages. So I recommended you please go to my channel and watch this video. Okay. This is about demo of website by using HTML CSS for beginners. Okay. Actually, this video covered the demo of this project. So please, I recommended you firstly go and watch the demo of this project. Okay. So without wasting time, let's start. Everyone knows how we create the file of HTML. So firstly, I'm just open the file of index. Okay. This project is in my desktop. Okay. And the name of this project is web project. This project has 10 pages, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, as you can see. This project has one folder and which is CSS, and another folder is graphics, and another folder is video. This CSS folder means that we are using the external CSS in this project because there are many benefits of external CSS, and we have also discussed on a lecture covered on external CSS, inline CSS, internal CSS, and the difference everyone knows, okay, about them. So we are using the external CSS in this project. Okay, firstly I'm just open the index file. Okay, I run this project. Okay, I'm not एक पेज पर जाके जो है हम लोग कवर नहीं करेंगे. वी आर नॉट कवरिंग दी ओवरव्यू ऑफ दिस प्रोजेक्ट. ठीक है, दिस वीडियो आपको प्रोजेक्ट जो है वो डेमो जो है वो प्रोवाइड कर रही है. सो प्लीज वॉच दिस वीडियो. ठीक है, मैं बार बार एक क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो लेट्स स्टार्ट. The first page, as you can see, is our index page. We can also say home page. Okay, so let's move toward code, and I'm not writing the code because due to shortage of time. Okay, our goal is to understand the code, understand the previous concept. Okay, this project cover all your previous concepts, so please be attentive. Okay, this project cover your all basic concept about HTML CSS. Okay, so let's start. Okay, this is the structure, basic structure of HTML, everyone knows. Okay, this is the title page. Title page actually does what? देखते हैं. Pakistani writer Khalilur Rahman Qamar. As you can see here, this is the title. Okay, अगर हम लोग टाइटल में कुछ लिखते हैं तो टाइटल हमारा कहाँ पे डिस्प्ले होता है? Here. Okay, now we have what? The link of external CSS. Okay, external CSS file, and here is the CSS file. Okay, everyone knows how we create the CSS file and how we link it in HTML file. Okay, now we have head tag. Okay, in head tag we have two tags, link title and link tag. Now we have body tag. In body tag actually cover the body of HTML page, as you can see. Okay, now in body tag we have container tag. Okay, container tag actually does what? Containers tag start from this and end from here. Okay, and all the codes are in under the container tag. So container tag does what? In CSS we actually see container tag actually does what? Container tag actually this, and body is actually this. Okay, body color is black. So here we can see the body color is black.
and the container is does what? Okay, this is just for styling. ठीक है, अगर हम लोग कंटेनर यूज नहीं करना चाहते, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू. Okay, so body is, the color of body is black. If we change this, you will see what happened. If I run this, as you can see, the color of body is changed. So okay, the background color is black and the maximum width of background of container is 1100. This means that the container width is 1100, means that from this to this width is 1100. Okay, padding and margin is 0, and everyone knows the padding and margin concept. Okay, now we have another div, and which is attribute class, and the name of this attribute is index header. Okay, okay, in which we have one image tag, and everyone knows that we saved image in index. Sorry. As you can see, web project, and web project we have one graphic folder, and in which we have many images. So as you can see, source is graphics. ग्राफिक के फोल्डर में जाएंगे, in which we have खलीलुर रहमान कमर picture, and the type of this picture is PNG. Alt actually does what? Alt attribute, if we have internet issue, then ये क्या करता है कि ये जो है हमारा एक we can say कि नेम शो करवा देता है. ठीक है, इमेज जब हमारी लोड नहीं होती. So that's why we are using this alt attribute. Okay, now we have another div, which is index header content, and the name of the content in which is Khalilur Rahman Kamar. As you can see, this is the image, and this is the another div, index header content, and this is the other div, index content 1. So let's move toward its as you can see here, I have one index header. Okay, here dot is the selector of CSS. Index header. अच्छा, we are not covering the basic concept in this video. Okay, okay. Index header में जब हम लोग जाएंगे, in which we have one image tag. As you can see, index header in which we have one image tag, and the styling of this image is width is this of this image, and position is relative. Because one question appear here, how we display the text on image. So here is the answer. So firstly, we just setting the position of image is relative, and the position, then we adjust the position of content is absolute, as you can see. Okay, ठीक है, हमें क्या करना पड़ता है, हमें इमेज की पोजीशन को रिलेटिव करना पड़ता है, और हमें कंटेंट की इमेज को एब्सोल्यूट करना पड़ता है. देन अदर फिर हमें एट्रीब्यूट्स, हमें जो वी कैन से कि हमें सीएसएस जो है अकॉर्डिंग टू कंटेंट एंड इमेज सेट कर सकते हैं. इट्स ऑल डिपेंड ऑन अस. ओके, नाउ लेट्स सी. width is this, position is this, margin and padding. If we change this width, as you can see, the width of image is changed. ठीक है, so now we have what? Index header content. The color of index header content is this, position is absolute. So the color of we can say code. Okay, color code जो है वो it's not difficult. You are just type on browser and you get all the codes of any color. Okay, next position. Top of this content is 330 pixel. Text align of this content is bottom. Margin left of this content is 230 pixel, and font size of this content is 3 RAM. So this is the CS of I am talking about this content. Okay, this content. Okay, this is the CSS of this content. So now the CSS of another content is position absolute, because this content is on image,
element. Okay, top of this content is 380 pixels. Text alignment of this content is bottom. Margin left of this content is through 230 pixels. Font size 1 rem and color is this. Okay, so now let's move toward list. Okay, I'm talking about this list. Okay, in which we have div, and div in which we have navbar, in which we have ul tag. Okay, ul tag is for unlisted, for displaying the unordered list. Okay, in which we have one button tag, and in which we have a tag, ठीक है, for displaying, for link the page, ठीक है. Okay, as you can see कि हमारे पास 10 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारे पास बटन के टैग्स हैं, इन विच वी हैव 9 जो है ए टैग्स. ओके, हम लोगों ने लिंक जो है वो क्या करने हैं, पेजेस हम लोगों ने 10 बनाने हैं, और उसके बियॉन्ड हम लोगों ने लिंक्स जो है वो सेट करने हैं. ओके, नाउ वी एज यू कैन सी वी हैव लिस्ट, ठीक है, और उसमें हमारा बैकग्राउंड कलर सेट हुआ हुआ है. ओके, बैकग्राउंड कलर इज दिस, ठीक है. Now we have in list class we have ul tag, as you can see. Okay, in which we have margin, padding or background color. If we change this and also change this, you see कि list color does not change. Okay, देख सकते हैं, ठीक है, कि हमारे पास लिस्ट कलर चेंज नहीं हुआ. ठीक है, अब हमारे पास बैकग्राउंड कलर एक बटन का सेट है. जो हमारे पास यूएल के अंदर बटन थे उनका बैकग्राउंड कलर हमारे पास ये था, उसका कोड इज दिस, और हमारे पास सिर्फ चेंज है, और हमारे पास लिस्ट का कलर बाय डिफॉल्ट इज वाइट. ओके, सो बटन के अंदर हमारे पास क्या स्टाइलिंग है, एज यू कैन सी कि पैडिंग हमारे पास 10 पिक्सल्स, 20 पिक्सल, मार्जिन इज 0 पिक्सल, फॉन्ट स्टाइल इज इटैलिक, द कंटेंट जो है वो फॉन्ट साइज. ओके, font size of content is italic, background color is this, border is none because हमें border, we don't need the border, margin left is 10 pixel. Okay, as you can see here we have list class in which we have ul tag, in which we have button tag, in which we have a. Okay, a में जो है in which we have cs and the color of the content is white. If I remove this, as you can see the color is blue. ठीक है, जो links होते हैं उनके color blue होते हैं, that's why we are changing. Okay, okay, when we hover, when we move our mouse, when we click our mouse on the context, okay, जब मैं hover करती हूँ we can say list पर, तो the color of content is changed. ठीक है, so this here is black. If we change this into red, the color is changed, as you can see. Okay, now move toward index table. Okay, index table. Here everyone knows how we display a table by using HTML, CSS. Okay, I recommended you this one video on HTML table. Okay, so please go to my channel and watch the video of how we display table HTML, CSS. Okay, so please go and watch this video so that your concept will be clear. Okay, as you can see I have one table tag in which we have attribute class, and the name of this attribute is index table. इसके अंदर हमारे पास जो है एक tr tag है. Okay, in which we have td tag. tr tag is used for rows and td tag is used for data. call span के concept जो है वो also discussed in my YouTube channel, as you can see here. ठीक है, so please go and watch this video. So call span है quick fact. Why? Because हम लोगों ने quick fact का जो है here is the table. Okay, quick fact का हम लोगों ने क्या करना है, call span हम लोगों ने set करना है. ठीक है, okay.
Here is the TR tag, and in which we have two TG tag, introduction and Pakistani writer, means ke one column पे introduction and another column is Pakistani writer. Okay, data. Here is the TR tag closed, another TR in which we have two T tag, okay, and another TR tag in which we have two TD tag, okay. So there are many TR tag here, and here is the table tag closed. Now move toward its CSS index table, in which we have line height, okay, line height attribute. If we remove this property, we can say, okay, line height does actually what? As you can see, line height जो है वो spacing create करती है, okay. So means के line height means के इस we can say इस रो TR रो और नेक्स्ट TR रो में कुछ स्पेस क्रिएट हो जाए, मीन्स के ये भी हम कह सकते हैं, मीन्स के हमारा जो है कंटेंट प्रोफेशनल करने के लिए हम लोग लाइन हाइट को यूज करते हैं. फॉन्ट साइज मीन्स के हम फॉन्ट साइज सेट करेंगे कंटेंट का 15 पिक्सल. हियर इज मार्जिन टॉप इज 50 रैम 5 रैम, सॉरी मार्जिन टॉप मीन्स दिस, ओके. Margin top is 5 rem. Text alignment is left, means के the text alignment is left, okay. Text alignment is left, or margin left is 100 pixels, and border collapse width is means के index width of index table is 700, okay. अच्छा, border collapse. Here border collapse actually does what? If we remove this, here you can see border collapse, ठीक है. हर TD tags have border, ठीक है. As you can see here, I have one index table and in which we have TD, means कि हर we can say कि data के ऊपर border set कर दे, and which should be 1 pixel solid होना चाहिए, okay. So as you can see कि ये set हो गया, लेकिन border collapse क्या करेगा, एक proper border का जो है table का border set हो जाएगा, as you can see, okay. Now let's move toward video. Now the video should be center. I'm using here center tag, okay. Video अच्छा, यहाँ पे हम लोग एक concept है कि हम लोग video कैसे display कर सकते हैं. यहाँ पे हमारे पास video का starting and ending tag use है, in which we have ID attribute and in which we have index video, the name of this ID और control. अच्छा, control के attribute क्यों use होता है? I remove this. अगर मैंने ये रिमूव किया, अब क्या होगा जी? As you can see, control जो है are not displaying here. I'm not allowed to on this video to start this video, to off this video. So control actually does it, okay. ये controls हमें controls provide करता है. Names actually हमें concept के लिए देती है. As you can see, देखो हमारे पास different controls जो है वो display हो जाते हैं. Okay. Okay, now we have another h1 tag, and in which index video content, and the index video content is here is this, okay. So let's move toward its CSS. Index video in which we have one, this is the width of video, okay, 800 pixels. Height of this video is 400. Margin padding is 0. Background color is black, and margin top is 4.5 gram. Index video content, ठीक है, margin top is 0 pixel, margin left is 116 pixel. Font size of this content is 13 pixels, and the margin bottom of this content is 15 pixel. Now we have an footer tag, ठीक है. Footer tags actually does what, in which we have h3 tags, and the h3 tags in which we have 8 tags, and 8 tags have link, and links to have moved toward contact us page, okay. Contact us page, if we see the code, as you can see here is contact us page link, okay. This we can say content cover the contact us page link, okay. Okay, now we have hr tag. Hr tag actually does what? Actually hr tag is actually for line. Here as you can see this, okay, hr tag actually displaying the line on web pages, okay.
Now we have another div, and the name of this div is footer image. Okay, footer image, in which we have one image tag, in which we have 4 images tags, and the source of this image tag is graphic के folder में जाए, in which we have Facebook image, or the type of this Facebook image is JPG. Now we have div closed, and here we have 2020 famous Pakistani writer one content, and this is the code of here, as you can see this content. Okay, so this C, okay. There are many code for making your website professional, okay. So now move toward its CSS, footer CSS. As you can see, the background color of footer is this. Color of content is white. Text alignment, centered, padding, font size of content is 14 pixel. Margin of this content, margin of the footer is 0. Up now footer image में जाए, in which we have one image tag, one in 4 in images tags, and in which क्या है जी हमारे पास width of these images set here is 30 pixel, height of these images are 30 pixels, and margin is 10 pixel. Okay, now this page is completed. So now move toward page and toward another page, and which is life and career. Now move toward and into another page, and which is about life and career of Khalilur Rahman Kamal. Okay. Here we open the okay. Here is the basic structure of this page, or this page contain many context. So as you can see, here is the container, or this container जो CSS है वो same है index के CSS page वाली. Okay, now we have one h1 tag, or this h1 tag have जो है वो ID attribute, and the name of this ID is life and career header. If we see life and career CSS, okay, life and career header, background color is this, context color is white, padding of the context is 35 pixel, text alignment is center, and the font size of the context is 55 pixels. Okay, here is the life and career header, as you can see. Okay, or this is all about the header of and CSS of this area. Okay, now we have what? Now we have another div, and the name of the div is attribute class, and the class is name of class is life and career content, in which we have h1 tag, Benny P tags. Okay, as you can see. Okay, now we have another h1 tag, in which we have ins tag. Ins tag is actually underline the context. Okay, now we have p tag and many okay, here is the hr tag. Hr tag actually display the line, as you can see here. Okay, and now we have hr tag. Now we have nav tag, ul tag, and li tag, means this context is display with bullets. Okay, this as you can see here. Okay, now we have another h3 tag, hr tag, nav tag, ul tag, li tag. Okay, and here is the footer. Okay, दिस फुटर एक्चुअली सेम जो है वो इंडेक्स के पेज वाला है, CSS बिल्कुल सेम है, ठीक है. और दिस वेबसाइट के में जो है वो हमारे पास जो एक हम लोगों ने फुटर डिजाइन किया है, और वो तमाम फुटर हमने तमाम पेजेस के साथ लिंक कर दिया. ओके, सपोर्ट कॉपी पेस्ट कर दिया.
नाउ मूव टुवर्ड द सीएसएस ऑफ दिस पेज। और इस पेज की जो सीएसएस है कॉन्टेक्स्ट की, वो हमारी सिर्फ 2 लाइंस में कवर है। एंड दिस इज मार्जिन लेफ्ट जो है कॉन्टेक्स्ट कितना 10 पिक्सल्स होना चाहिए, तमाम मार्जिन कॉन्टेक्स्ट जो है वो 10 पिक्सल्स, और लाइन हाइट हमारी 2 पिक्सल्स होनी चाहिए। मीन्स दैट कि तमाम कॉन्टेक्स्ट हमारा जो है वो मार्जिन लेफ्ट होना चाहिए, और हमारे पास जो है लाइन हाइट मींस कि द डिफरेंस बिटवीन टू लाइन शुड बी 2 पिक्सेल्स। ओके, नाउ मूव फॉरवर्ड इनटू अनदर पेज एंड व्हिच इज अबाउट द पर्सनल लाइफ ऑफ खलीलुर रहमान कमर। Okay, this page is actually about the personal life of Khalilur Rahman Qamar, or this is the basic structure. Okay, here is the we can say header area of this page. Okay, and the header area of this page, as you can see, the here personal life header, background color of this page, sorry, header area, padding, text alignment, or font size. I'm talking about this area. Okay, now we have personal information, okay, in which we have p tags, and in which we have mark. Okay, mark tag actually does what? It's mark the context in yellow color. Okay, मीन्स दैट के मार्क के अंडर जितना कॉन्टेक्स्ट है वो येलो, उसके ऊपर एक मार्क का कलर हो जाए। ओके, so now we have another p tag, or this div is closed. Okay, now we have another div which is जो है वो फैमिली इमेज। ठीक है, और अगर हम लोग जो है पर्सनल इंफॉर्मेशन की सीएसएस को देख लें, देखिए पर्सनल इंफॉर्मेशन की जो सीएसएस हमारी है वो एक्चुअली डज वर्ड हमारी क्या करती है जी, हमारी सिर्फ इसमें हमारे पास क्या है जी, मार्जिन लेफ्ट 5 पिक्सल, मींस कि तमाम कॉन्टेक्स्ट जो यहाँ से स्टार्ट है एंड एंड इज हियर, ये हमारी मार्जिन लेफ्ट हो जाए और हमारी सीएसएस यहाँ पे अप्लाई नहीं हुई। ठीक है, नाउ वी हैव फैमिली इमेज इन विच वी हैव फिगर टैग। फिगर टैग में हम लोगों ने फिगर कैप्शन, फिग कैप्शन मींस दैट फिग कैप्शंस क्या करते हैं, हमारी इमेज के जो है नीचे एक कैप्शन डिस्प्ले कर देता है, मींस कॉन्टेक्स्ट एक छोटा सा। ओके, and we have image and image source graphic में जाएं which we have family picture of the we can say type of this image is jpg, and if we move toward the here with style of this image is this, margin laptop of this image is 180 pixels। फैमिली इमेज में जाएं, इसके अंदर जो हमारे पास इन विच वी हैव इमेज, और इस इमेज की विड्थ और हाइट यहाँ पे सेट है। ओके, और फिर कैप्शन की भी हमारे पास ये सेंसर, और वो भी मार्जिन लेफ्ट हमारे पास 10 पिक्सल है। Okay, now we have h1 tag, h1 tag in which we have ins tag, means that this context is underlined. Okay, and as you can see here, okay, now we have different pictures, family image क्या एक हमारे पास div है, और in which we have pictures, family, image source। अब देखें, अब पिक्स फैमिली हमारे पास है। नाउ वी हैव अनदर पिक्चर daughter1.jp जो है। नाउ वी हैव क्लियर जो है हमारे पास div की आईडी है क्लियर। अच्छा, क्लियर की आईडी हम लोगों ने वाई, बिकॉज इसमें हम लोगों ने जो सीएसएस डिस्प्ले की हुई है सेट है वो हम लोग जो है वो देखेंगे। ठीक है, क्लियर मींस बोथ। ठीक है, मींस किसी सीएसएस क्या है, बोथ div हमारे पास। now we have another div which is pics family in which we have set image। now we have another picture, we have h1 tag, और h1 tag फिर हमारे पास ins tag है। now we have a clear tag, now we have another picture in div, okay, which is the name of this div is pics family। ठीक है, class we can say class name, or now we have there many pictures are set here, you can see the code। ठीक है, अगर हम लोग जाएं स्टाइलिंग तरफ, एज यू कैन सी फैमिली इमेजेस में जाएं, जो इमेज है वो ये सेट है। ठीक है,
पिक्स फैमिली फ्लोट लेफ्ट और मार्जिन लेफ्ट हमारे पास 50 पिक्सल्स है। मींस दैट ये जो पिक्स फैमिली है यहाँ ये डिव के अंदर क्लोज है, ये भी डिव के अंदर क्लोज है। ये क्या फ्लोट लेफ्ट और मार्जिन लेफ्ट ये जो इमेज है ये डिव के जो है वो आउटसाइड है। मींस दैट हम लोग ने डिव का कॉन्सेप्ट देखा था कि जब हम फ्लोट लेफ्ट करते हैं जो जो हमारा नेक्स्ट इमेज होती है, जो भी टैग होते हैं उसके नेक्स्ट जितना भी वी कैन से एलिमेंट्स होते हैं वो राइट पे शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये राइट पे शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने इस टैग में हम लोगों ने इस एलिमेंट में स्टाइलिंग में जो है वो एक क्लियर की आईडी दी है। मींस के स्टाइलिंग में जाके हम लोगों ने क्लियर बोथ किया, दैट्स व्हाई वो राइट पे लेफ्ट पे सॉरी डिस्प्ले हो। फिर हम लोगों ने इसको सेट किया फ्लोट टू लेफ्ट और ये वाली इमेज ऑटोमेटिकली फ्लोट राइट सेट हो गई है। नाउ वी हैव अनदर टैग हमारे पास, ये INS में जो है वो क्लियर है, INS के अंडर टैग है, अंडरलाइन है, ठीक है। अब हमारे पास ये भी इमेज सेट है कि फ्लोट लेफ्ट इमेज है, ये इमेज हमारे पास ऑटोमेटिकली राइट पे सेट हो गया है। यहाँ पे हम लोगों ने एक स्टाइलिंग में चेंज किया है कि हमारा क्या हो जाए, हमारा क्लियर बोथ हो जाए। मींस कि ये हम लोग खुद पिक्चर सेट करेंगे, यहाँ पे इफेक्ट मत पड़े, सिर्फ इस इमेज पर इफेक्ट पड़े, ठीक है। अगर हमारा जो है वो फ्लोट का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने एक वीडियो में कवर किया है, प्लीज गो टू माय चैनल एंड वॉच द वीडियो। तो आप इजीली इमेजेस को सेट कर सकते हैं और आप CSS को भी देख सकते हैं और आप लोग कोड को भी देख सकते हैं। नाउ वी हैव फुटर, और फुटर सेम है हमारा जैसे हमारा हेडर पेज में था। सो नाउ मूव टुवर्ड इनटू अनदर पेज एंड व्हिच इज अबाउट द कंट्रोवर्सीज। और कंट्रोवर्सीज में भी हमारे पास थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। As you can see, this is the basic structure, ठीक है। ये टैग हमारे पास रिपीटेड है, so if I remove it, it doesn't happen, okay। This is the same और this is also the same, ठीक है। कंट्रोवर्सी हेडर है हमारे पास और कंट्रोवर्सीज है और CSS हमारे पास बिल्कुल सेम है। नाउ वी हैव div टैग और हमारे पास कंट्रोवर्सीज कंटेंट है in which we have different p tags and mar tag actually does this, as you can see, ठीक है, as you can see this। और नाउ वी हैव इमेजेस, ठीक है। कंट्रोवर्सीज इमेजेस हमारे पास हैं और इमेज वी हैव 2 इमेजेस और यहाँ पे हमारे पास फुटर टैग है और फुटर जो है वो हमारे पास सेम है इंडेक्स के पेज जैसा, ओके। अगर हम लोग यहाँ पे देखें CSS कंट्रोवर्सी हेडर की CSS हमारी सेम है, ठीक है। एज यू कैन सी कंट्रोवर्सीज इमेजेस में आप जाएं, इमेजेस में जाएं, मार्जिन लेफ्ट हमारे पास है, विड्थ हमारे पास है, मार्जिन हमारे पास, मार्जिन बॉटम हमारे पास है, ठीक है, ओके। अगर एज यू कैन सी हमारे पास एक इमेज ये है हमारे पास और एक इमेज हमारे पास ये है, ठीक है। हमारे पास इमेजेस सेट है और कंट्रोवर्सीज कंटेंट जो है वो हमारे पास, उस पे हमारे पास क्या CSS सेट है, मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सेल्स ओनली, ओके। दिस इज ऑल अबाउट द कंट्रोवर्सी पेज, ठीक है। Now move toward into another page which is about the films of Halil Rahman Qamar। फिल्म जो है पेज थोड़ा सा हमारा कवर कर रहा है जो है टेबल को, ठीक है। टेबल का कॉन्सेप्ट हम लोग देख चुके हैं, ओके। हमारे पास ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे H1 का टैग है और हमारे पास H1 का टैग जो है वो सेम है, हमारे पास H1 का टैग सेम है, ठीक है। नाउ वी हैव टेबल टैग इन व्हिच वी हैव ID एंड द नेम ऑफ दिस ID इज फिल्म टेबल, ठीक है। नाउ वी हैव TR टैग, डिफरेंट TR टैग्स आर यूज्ड इन दिस टेबल, डिफरेंट TH टैग्स आर यूज्ड इन दिस टेबल, ठीक है। Now move toward the styling of this page, film table। As you can see here is the films header, ठीक है। films header हमारे पास CSS बिल्कुल सेम है, ठीक है। as you can see here, ठीक है। और हमारे पास films की tables में जो हमारे पास क्या CSS अप्लाई है, लाइन हाइट, ठीक है। हम लोग प्रीवियस हेडर के सॉरी इंडेक्स के पेज में जो है वो लाइन हाइट का कॉन्सेप्ट देखे हैं, या फॉन्ट साइज क्या है, मार्जिन टॉप क्या है हमारे पास, मींस के दिस मार्जिन टॉप हमारे पास यहाँ पे सेट है। नाउ वी हैव टेक्स्ट अलाइन, मार्जिन लेफ्ट, बॉर्डर कोलैप्स है हमारे पास, बॉर्डर कोलैप्स एक्चुअली डज व्हाट वी आल्सो सी, कि हम लोगों ने देख लिया था कि बॉर्डर कोलैप्स एक्चुअली डज व्हाट, विड्थ हमारे पास जो है वो डिस्प्ले है,
नाउ वी हैव फिल्म टेबल में आप जाएं, TR-TD टैग में कलर सेट कर दें, ठीक है। मींस के आप TR में जाएं, आप TD में जाएं और आप कॉन्टेक्स्ट का कलर व्हाइट कर दें, सॉरी ब्लैक कर दें। फिल्म टेबल में आप जाके TH मींस के आप जाएं, आप बैकग्राउंड कलर ये सेट करें TH में जाके, ठीक है। और नाउ वी हैव TD, ठीक है। TD मींस के डाटा का बॉर्डर हमारे पास सेट किए है और पैडिंग हमारे पास सेट किए है, ठीक है। मींस के जितना भी डाटा है उसका बॉर्डर ये सेट कर दें और बॉर्डर कोलैप्स हो, ठीक है। नाउ वी हैव टेबल के बाद हमारे पास डिफरेंट इमेजेस हैं। एज यू कैन सी फिल्म इमेजेस में हमारे पास 2 इमेजेस डिस्प्ले है। नाउ वी हैव जो है HR टैग, ठीक है। एज यू कैन सी हमारे पास 2 इमेजेस हैं और उसके बाद हमारे पास HR का टैग है। और हमारे पास फिल्म इमेजेस में हमारे पास क्या है, फिल्म इमेजेस देखिए मार्जिन टॉप और मार्जिन लेफ्ट, मीन्स कि मार्जिन टॉप है और हमने मार्जिन सेट किया, हमारी इमेजेस सेट हो गई हैं। नाउ वी हैव H1 टैग जो है अनकमिंग फिल्म्स है और हमारे पास ये सेट है, ठीक है। नाउ वी हैव अनदर टैग, अनदर इमेज एंड व्हिच इज इन div tag and the attribute of this div tag is id and the name of this image। अच्छा, फिल्म इमेज हमारे पास ये है, ये भी हमारे पास मार्जिन सेट है। अनकमिंग फिल्म की जो टेक्स्ट है वो हमारे पास मार्जिन लेफ्ट है। फिल्म कंटेंट है, अब फिल्म कंटेंट क्या था हमारे पास, एज यू कैन सी हियर इज द फिल्म कंटेंट एंड इसके अंदर हमारे पास P टैग्स हैं फॉर कॉन्टेक्स्ट के लिए, ठीक है। और ये हमारे पास सिंपल सा कॉन्टेक्स्ट हमारे पास यूज है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे CSS के मार्जिन लेफ्ट और मार्जिन बॉटम। ओके, दिस इज ऑल अबाउट द पेज ऑफ films of Halilur Rahman Qamar. Now move toward into another page which is about the dramas of Halilur Rahman Qamar. Here is the we can say here is the table and different images are displayed here. So हम कोड देखते हैं। Okay, here is the basic structure of Halilur Rahman Qamar, ठीक है। sorry, here is the basic structure of about the films of Halilur Rahman Qamar, ठीक है। Here is the link, this is the basic structure, ठीक है। We also discussed it and here is the table and there are many table, film table, ठीक है। and sorry, this is the dramas, sorry, okay, we just open the drama file। okay, this is all the basic structure of this page, ठीक है। as you can see this is all we discussed it, okay, we already okay। now we have P tag or P tag is in bold, ठीक है, as you can see here, ठीक है। और now we have the table tag in which we have table drama table in which you have a different TR tag set here, as you can see। and this is the TR tag in which we have TH tag, many TH tag, and this is the TR tag in which we have many TD tag। here you can see this is very simple table, ठीक है। as you can see there, okay, here is the table and now move toward the style of this page। so header of drama list, जो header हमारा बिल्कुल सेम है, ठीक है। बैकग्राउंड कलर पैडिंग टेक्स्ट जो है दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। कोई लॉजिक नहीं है, डेट्स है, ठीक है। टेबल ड्रामा की जो हमारे पास लाइन हाइट, फॉन्ट, टेक्स्ट लाइन, मार्जिन लेफ्ट, हमारे पास बॉर्डर फ्लैप्स, हमारे पास विड्थ के एट्रीब्यूट्स बिल्कुल सेम है हमारे प्रीवियस टेबल्स जहाँ पे भी यूज हुए हुए हैं। हमारे पास कलर ब्लैक कर दें, TH में बैकग्राउंड कलर हमारे पास ये है, TD में हमारे पास बॉर्डर पैडिंग सेट है, ठीक है। ओके, अब नाउ वी हैव ड्रामास इमेजेस, ठीक है। अब हमारे पास एक टॉप ड्रामा का हमारे पास ये एक स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट डिस्प्ले है, ठीक है। और नाउ वी हैव ड्रामास हेडिंग मेरे पास तुम हो, ठीक है। नाउ यू कैन सी मेरे पास तुम हो इज वेरी फेमस ड्रामा ऑफ पाकिस्तान, हलीलुर रहमान कमर, रिटन बाय हलीलुर रहमान कमर, ठीक है। अच्छा, दिस इमेज जो है, अब एज यू कैन सी कि जब हम लोगों ने फ्लोट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो अगर हम लोग देखें ये इमेज हमारे पास फ्लोट लेफ्ट है,
जब हम फ्लोट लेफ्ट करते हैं तो आफ्टर द एलिमेंट ऑफ फ्लोट जो है विल बी अफेक्टेड, ओके। और हियर एज यू कैन सी के इफेक्ट हुए हैं, ठीक है। ये कॉन्टेक्स्ट जो है वो राइट पे आ गया, बट हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, क्लियर का आईडी दे दिया, सेट कर दिया। एज यू कैन सी कि मेरे पास तुम हो, नाउ वी हैव div close, now we have जो है ड्रामा इमेजेस, ठीक है, अनदर इमेज, ठीक है। और एज यू कैन सी वी हैव पी टैग। अच्छा, अब देख सकते हैं एज यू कैन सी कि यहाँ पे हमारे पास जो सदके तुम्हारे हैं वो हमारा जो है वो कहाँ पे है, क्लियर की क्लास के अंदर, ठीक है। जब हमारे क्लियर की क्लास के अंदर है मींस के यहाँ पे क्लियर बोथ है, ठीक है, ओके। अब हम लोगों ने क्लियर का भी कॉन्सेप्ट देखा था, ठीक है, ठीक है। नाउ वी हैव ड्रामा इमेज इन विच वी हैव इमेज इन विच वी हैव एन इमेज टैग, और फिर हमारे पास एज यू कैन सी है, फिर हमारे पास क्या है जी, सदके तुम्हारे, ठीक है। This is also the famous drama of Pakistan and written by Halilur Rahman Kamal। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, ये वाली इमेज सेट है जी फ्लोट लेफ्ट, ठीक है। और ये हमारे पास कॉन्टेक्स्ट जो है वो ऑटोमेटिकली राइट पे आ चुका है। यहाँ पे हमारे पास ये डिप अंडर क्या है, हमारे पास क्लियर, और यहाँ पे हम लोगों ने इमेज को फ्लोट लेफ्ट किया है और हमने यहाँ पे क्या कर दिया है, ये राइट पे आ गया। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे मोहब्बत तुमसे नफरत है, यहाँ पे भी ये हम लोगों ने क्लियर बोथ किया, दैट्स वाई कि ये लेफ्ट पे आ जाए, और ये हम लोगों ने फ्लोट लेफ्ट किया है, और यहाँ पे हम लोगों ने ये खुद ब खुद ये सेट हो चुका है। सो ये हमारी सीएसएस बिल्कुल सेम है। अगर आपको कॉन्सेप्ट फ्लोट का क्लियर है देन यू कैन इजीली जो है वो डिजाइन दिस पेज, ओके। अगर मैं आपको दिखा दूं कोड और इसकी सीएसएस, एज यू कैन सी कि हमारे पास कोड क्या है, कोड बिल्कुल सेम है, ठीक है। अगर आप एक इमेज को ये देखें, ड्रामा हेडिंग और ये वाला कोड, ये वाला कोड बार बार रिपीट है, ठीक है, रिपीटेड है। और इसकी मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। ड्रामा इमेजेस हमारे पास है, ड्रामा कंटेंट हमारे पास है, लाइन हाइट क्लियर हमारे पास है, हमारे पास टॉप ड्रामा की थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेट है, हमारे पास फेम ड्रामा है, ठीक है। एज यू कैन सी क्लियर ड्रामा इमेजेस हमारे पास है, फेम ड्रामा हमारे पास यहाँ पे है हमारे पास, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ड्रामा डॉट HTML, ठीक है। So now move toward into another page which is about the poetry and dialogues of Halilur Rahman Qamar। This page covered the poetries and dialogues of Halilur Rahman Qamar। एक वीडियो डिस्प्ले है, वीडियो का भी कोड हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पे थोड़ी सी पोएट्री उर्दू में भी डिस्प्ले है, उर्दू में पोएट्री आप कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं, यू कैन जस्ट कॉपी एंड पेस्ट द कोड हियर और आप लोग कर सकते हैं। Here is the poetry and dialogue of Halilur Rahman Qamar। This is the basic structure. This is the basic structure, and there are many H1 tags are displayed here. ठीक है? So as you can see, we have one title, link, tag, title tag. This is all about the basic structure. ठीक है? H1 tag और H1 tag की CSS बिल्कुल same है, ठीक है? Previous pages वाली, ठीक है। And now we have poetry images, and images हमारे पास set क्या है, हमारे पास देखिए इस इमेज की हमारी सीएसएस डेफिनेटली सेट होगी कि फ्लोट लेफ्ट, ओके। और यहाँ हमारी इमेज राइट सेट हो जाएगी, ठीक है, ऑटोमेटिकली। नाउ हम लोगों ने एक डिव को जो है वो सेट किया क्लियर का, मीन्स कि आफ्टर ये जो है हमारा क्लियर बोथ हो जाए और यहाँ पे इफेक्ट मत पड़े, ओके। नाउ वी हैव इमेज टैग और हमारे पास दो इमेजेस डिस्प्ले हैं और ये वाली भी इमेज डिस्प्ले होगी और आप लोग ये वाला कोड देख सकते हैं इमेजेस का, ठीक है। और अगर हम लोग इसकी सीएसएस पर जाएं और अगर हम लोग सबसे पहले नाउ वी हैव पोएट्री डिव, हमारे पास सेट है पोएट्री एंड डायलॉग्स का, पोएट्री इमेजेस। अगर हम लोग पोएट्री इमेजेस में जाएं, एज यू कैन सी पोएट्री इमेजेस में हमारे पास जो इमेजेस हैं वो हमारे पास विड्थ, हाइट और मार्जिन लेफ्ट सेट है। पोएट्री इमेजेस में अब नाउ वी हैव पोएट्री इमेज 1, इसके अंदर हमारे पास फ्लोट लेफ्ट है।
और नाउ वी हैव अनदर इमेज, ठीक है, ये इमेज ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी। और नाउ वी हैव div clear in which we have image, different images, और now we have image poetry image 1। as you can see poetry image की हमारे पास क्या है जी, float लेफ्ट सेट है हमारे पास। नाउ वी हैव अनदर इमेज, नाउ वी हैव div, और जो है वो क्लियर के अंडर div सेट है। और नाउ वी हैव टू इमेजेस, ठीक है, और हमारे पास ये CSS सेट है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। और अभी तक जो हम लोग क्लियर का वर्ड यूज करते आ रहे हैं ना, उसका मतलब है उसकी जो CSS है वो ये है, क्लियर वो, ठीक है। तो इसके फ्लोट, ऐसे फ्लोट राइट मीन फ्लोट लेफ्ट, सॉरी मीन्स कि जो हम लोग ने फ्लोट लेफ्ट किया था वो उसको क्लियर कर दो, और उसके बाद वाला कॉन्टेक्स्ट फ्लोट जो है हमारा लेफ्ट पे कर दो, ठीक है। सो नाउ वी हैव इमेज टैग, ठीक है, ये हमारी इमेज इंडेक्स वीडियो वाली हमने आईडी यूज की है, मींस के हमारी CSS सेम हो जाए। नाउ वी हैव अनदर इमेज विच div और which is under poetry image 9। अब as you can see कि poetry image 9 की हमारे पास CSS क्या है, मार्जिन लेफ्ट सेट है, ओके। Now we have another div which is about poetry content, और in which we have p tags। as you can see यहाँ पे हमारा p tag br tag is used for next line, ठीक है, as you can see। अब now we have poet name, ठीक है, पोइट्री कंटेंट एंड पोइट्री नेम जो है, टेक्स्ट लाइन हमारे पास सेंटर है, लाइन हाइट हमारे पास 1.5 है, ये वाला, ठीक है, ये वाला सेट है हमारे पास, ठीक है। और नेम हमारे पास खलीलुर रहमान कमर है, ठीक है। पोइट नेम, फोर साइज, मार्जिन लेफ्ट, हमारे पास कलर सॉलिड हमारे पास और ब्लैक कलर है, ठीक है, ओके। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो उर्दू में जो है पोएट्री सेट हो, यू जस्ट कॉपी फ्रॉम नेट फ्रॉम गूगल एंड पेस्ट इट, ओके, nothing is difficult here, okay। now move forward into another page which is about the awards of Khalilur Rahman, ठीक है, awards, ठीक है। if we open the awards of Khalilur Rahman Kamal award page, as you can see this is the basic structure, ठीक है, heading तक, ठीक है। now we have one p tag showing all to wins and 0 nomination, as you can see here, showing all to wins and 0 nomination। here is the table set here, ठीक है, in which we have one table tag, award table, in which we have tr tag, in which we have tt tag, one tt tag means ki 2016, in which we have this, okay। so be attentive, in which we have tg tag, in which we have one b tag means ki winner should be bold, okay। in which we have one br tag means कि next context जो है should be into an other line shifted, okay। so as you can see br tag means, और as you can see कि span tag, okay, हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या है, span tag, और span tag में हमारे पास लग स्टाइल अवार्ड है, और लग स्टाइल अवार्ड में हम लोगों ने यहाँ पे span में एक क्लास एट्रीब्यूट सेट है, क्लास उसका नेम क्या, अवार्ड कैटेगरी। अगर हम लोग अवार्ड कैटेगरी में देखते हैं हमारे पास क्या है, एज यू कैन सी अवार्ड कैटेगरी, अवार्ड कैटेगरी में हमारे पास एक कलर सेट है जो हमें ये कॉन्टेक्स्ट डिस्प्ले करवा रहा है, ठीक है, नथिंग इज डिफिकल्ट हियर, ठीक है, ओके। यहाँ पे हमारे पास अगर हम लोग अवार्ड टेबल में जाएं, हमारे पास जो है वो कोड डिफिकल्ट नहीं है। अवार्ड टेबल में TRTD में भी हमारे पास कोड सेम है, TDB में भी हमारे पास कोड सेम है, और कैटेगरी का कोड हम लोगों ने देख लिया है। Now we have TT tag best television writer, or in which we have a BR tag, अच्छा, this context cover the link, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एक BR का टैग है, मीन्स के नेक्स्ट लाइन पे शिफ्ट हो जाए, और इन विच वी हैव सदके तुम्हारे, मीन्स कि सदके तुम्हारे में एक लिंक का कॉन्टेक्स्ट शो हो कि हम लोगों ने कोई लिंक यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है, ठीक है। in which we have one span tag, and span tag is under the 2014 as you can see here, okay। और ये जो हमारे पास ये tr का टैग है वो सेम हमारे पास जैसे हमारे पास ऊपर है। now you can see
TT tag is under 2015 और हमारे पास now we have another TT tag और हमारे पास TT tag के कॉन्टेक्स्ट के हमारे पास ये हमारे पास बोल्ड हो जाना चाहिए। विनर नेक्स्ट लाइन पे हमारे पास पैन का टैग, नेक्स्ट लाइन पे जाके हमारे पास एक लक्स स्टाइल अवार्ड डिस्प्ले होना चाहिए। वो अवार्ड कैटेगरी उसका कॉन्टेक्स्ट हम लोग देख के आए हैं अभी क्या था। और हमारे पास जो है वो स्पैन टैग क्लोज होना चाहिए और नाउ देयर इज द TD tag closed here. Okay, now we have another TG tag in TR tag, and this tag in which we have best television writer, in which we have one BR tag means कि next text जो भी डिस्प्ले हो वो नेक्स्ट लाइन पे हो और वो अंडर दिस TG टैग के ही हो, ठीक है। इन विच वी हैव ए टैग बिकॉज हमने प्यारे अफजल को टेक्स्ट ऐसे डिस्प्ले करना है कि ये कोई एज अ लिंक शो हो, ठीक है। तो नाउ वी हैव दिस इज यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्लोज्ड है टेबल का टैग। नाउ वी हैव अनदर टैग div tag and which is under the two images tag and ठीक है। एंड अगर हम लोग देखें वर्ड इमेज में हमारे पास क्या है, तो एज यू कैन सी के वर्ड इमेज में हमारे पास मार्जिन टॉप है। एज यू कैन सी देखिए मार्जिन टॉप हमारे पास दो इमेजेस में सेट है। नाउ वी हैव अनदर वन वीडियो, ठीक है। और हमारे पास एक वीडियो है और वीडियो का कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा है हमारे पास। वीडियो का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देख लिया था, वीडियो को कैसे डिस्प्ले करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आईडी है इंडेक्स वीडियो की, मीन्स के जो हमारे पास CSS है वो इंडेक्स वीडियो वाली ही यूज होगी। नाउ वी हैव डिफरेंट फील्ड टैग्स एज यू कैन सी और वीडियो कंटेंट में हमारे पास अगर हम लोग देखें तो हमारे पास मार्जिन लेफ्ट है और वीडियो कंटेंट्स में हमारे पास क्या है, लाइन हाइट, मार्जिन लेफ्ट और बॉटम, ठीक है। ये देखिए ये हमारे पास वीडियो कंटेंट है, यहाँ इसकी भी CSS, तो ये हमारे पास वीडियो कंटेंट्स हैं, ठीक है। So this is all about the awards of Halilur Rahman cover, ठीक है। So now move toward into another page which is about the suggestion। अच्छा, okay, अगर कस्टमर को वेबसाइट देखने के बाद कोई सजेशन आती है कि वेबसाइट में ये मिस्टेक है, आप ये चेंज करें कुछ भी, तो दे कैन एंटर हियर, ओके। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास फॉर्म है, बेसिक ऑफ फॉर्म्स ये क्या होते हैं, ये क्या है, इनपुट फील्ड्स एंड हियर इज द इनपुट फील्ड, हियर इज द इनपुट फील्ड, ओके। So I recommended you please go to my channel, ठीक है, and watch the video। अब वीडियो क्या है जी, फॉर्म्स, इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर्म्स, ठीक है। फॉर बिगिनर्स के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट है हमारे पास वीडियोस का। सो प्लीज आई रिकमेंडेड यू, ठीक है। अगर हम सजेशन का पेज ओपन करें, ओके, यहाँ पे तक हमारे पास जो है वो क्या है, हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हम लोग रिपीटेडली देखते आ रहे हैं, ठीक है। नाउ वी हैव डिव, और डिव हमारे पास क्या है जी, सजेशन फॉर्म, और इन विच वी हैव कि हमारा फॉर्म सेंटर में डिस्प्ले होना चाहिए, फॉर्म का टैग इन विच वी हैव वन H1 टैग। अच्छा, फॉर एग्जांपल इफ वी आर यूजिंग द प्लेस होल्डर, तो हमें ये इस फर्स्ट नेम की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर हम लोग देखें तो यूजर को पता चल जाएगा कि यहाँ पे यूजर ने फर्स्ट नेम ही एंटर करना है। तो ये बैड प्रैक्टिस है, आई रिकमेंडेड यू प्लीज डोंट, ये मत लिखिए, ठीक है। अगर मेरी वेबसाइट में है तो जरूरी नहीं है कि आपकी भी वेबसाइट में हो, तो आपकी डिपेंड चॉइस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इफ आई रिमूव दिस, तो वी कैन इजीली अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हम लोग फर्स्ट नेम ही हम लोग ने एंटर करना है, ठीक है। So we have different input fields in which we have type, attributes, name, attributes, placeholder attributes and required attributes। अच्छा, required attributes क्या करता है जी, हम क्लिक करते हैं किसी भी बटन पे तो हमें नेक्स्ट पेज पे नहीं जाने देता, कहता है प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। ये तमाम फील्ड्स को फिल आउट करने के बगैर हमें नेक्स्ट पेज पर नहीं जाने देता, ओके। टेक्स्ट मींस कि इस फील्ड पे हमने टेक्स्ट इंटर करना है, इस फील्ड पे हमने ईमेल इंटर करनी है, मींस कि ईमेल का जो हमारे पास ईमेल का सेंटेक्स हम लोग को कंप्लीट करना होता है। पासवर्ड मींस कि हम लोग जब भी इनपुट फील्ड में टाइप करेंगे तो वो पासवर्ड शो होगा हमें। डेट मींस के डेट डिस्प्ले होगा। अच्छा, ये सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं। नाउ वी हैव अनदर बटन, एक हमारे पास इनपुट टाइप है बटन, जब हम बटन पे क्लिक करें तो हमें नेक्स्ट पेज पे मूव कर दिया जाए, ओके। सजेशन हमारे पास ये क्या है, सजेशन को हम लोग इसकी स्टाइलिंग देख लेते हैं, ओके।
सजेशन हेडर की हमारे पास ये सेम है। सजेशन फॉर्म हमारे पास बॉर्डर क्या है, सॉलिड फॉर्म का है, ब्लैक मार्जिन, बॉटम क्या है हमारे पास 90 पिक्सल मार्जिन, टॉप क्या 20 पिक्सल मार्जिन, लेफ्ट इज 400 पिक्सल मार्जिन, राइट इज 400 पिक्सल एंड हाइट इज 400 पिक्सल्स. ओके, so this is all about the suggestion page. So now move into another page which is about the contact us. Okay, as you can see here is the contact us page. और contact us page पे हमारे पास जो है वो कोड के थ्रू समझते हैं. Okay, this is the basic structure of contact us page. ठीक है, as you can see, here is the we have one context p tag in which we have contact us content. अगर हम लोग जाएं कॉन्टेक्ट अस के पेज पर, ये कॉन्टेक्ट अस हेडर हमारे पास CSS सेम है. ठीक है, कॉन्टेक्ट अस की हेडर की हमारे पास CSS सेम है. अगर हम लोग कॉन्टेक्ट अस कंटेंट में जाएं तो हमारे पास सिर्फ हेडर हमारे पास क्या मार्जिन लेफ्ट 10 पिक्सल्स. ठीक है, नाउ वी हैव वन फॉर्म. ठीक है, वन फॉर्म में हमारे पास div है, ID है, इनपुट टेक्स्ट. ठीक है, और हमारे पास इनपुट ईमेल है, हमारे पास वैल्यू क्या है, हम लोगों ने वैल्यू मीन्स कि जो डिस्प्ले होता है. ठीक है, ये फॉर्म है ये. ठीक है, ये हमने फॉर्म में हम लोगों ने डिस्प्ले किया है. ठीक है, यहाँ फॉर्म का कोड देख सकते हो. अगर हम लोग फॉर्म के जाए देखें, फॉर्म की CSS में देखें तो वी हैव वन विड्थ टैग एंड 700 पिक्सल विड्थ, पैडिंग इज 15 पिक्सल्स, बैकग्राउंड कलर इज दिस. ठीक है, बॉर्डर इज सॉलिड एंड द बॉर्डर कलर शुड बी दिस. ठीक है, now we have different p tags in which we have b tag means कि ये bold context होना चाहिए. ठीक है, और हमारे पास क्या है 1 2 3 4 5 p tags used हैं और हमारे पास different जो है context display है. ठीक है, और इसकी हमारे पास जो CSS है वो भी सेम है, contact us content. ठीक है, तो हमारे पास ये बिल्कुल सेम है. मार्जिन लेफ्ट देखिए हमारे पास यहाँ पे हमारे पास 10 है, और यहाँ पे हमारे पास इनपुट टेक्स्ट इनपुट की हमारे पास क्या है जी, फॉन्ट साइज 15 पिक्सल है, पैडिंग हमारे ये देखिए पैडिंग हमारे पास नहीं सेट 0 पिक्सल्स है, विड्थ हमारे पास 500 पिक्सल्स है, बैकग्राउंड कलर हमारे पास सेट है और बॉर्डर नन है. So this is all about the website of Pakistani famous writer. ठीक है, thank you so much. If you learn anything from our videos, so please don't forget to subscribe my channel and share my videos. Thank you so much.